Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we are back with lecture number 15 and I am Shahzad Ahmed Malik teaching you CSC 371 Database Systems 1. Let's start with the summary of previous lecture. In previous lecture, we covered some additional operations that are available in relational algebra. We talked about Cartesian product, then we saw that how joins can be basically performed on multiple relations and we discussed some different types of joins. We discussed about theta join, we discussed about equijoin, we discussed about natural join and then we discussed about outer join and in outer join we discussed left outer join, we discussed right outer join and full outer join and finally we talked about semi join. Let's start from where we left. There are still some operations left that needs to be discussed and we will hopefully complete those operations and then we will finally move towards relational calculus. Today's lecture outlines are some additional relational algebra operations that are division, aggregation and grouping. Then we talked about the relational calculus, then tuple relational calculus and in the last domain relational calculus. After join, the next operation that is available in relational algebra is division and it is not one of the basic operations that are available in relational algebra. Division is another important relation that you come across frequently in databases. Symbolic representation of division is same as we studied in our mathematics course. Suppose we have two relations R and S. R and S, then R divided by S is a relation over the attribute set A and R is defined over the attribute set B and such that B is a subset of A. Suppose we take C. Let's assume C and that is equal to A minus B. A minus B will be the attributes that are available in A but not in B. And C is the set of attributes of R that are not attributes of S. So if you have gone through basically this concept, if you are able to understand this concept, then it would not be difficult for you to understand the division operation. Division operation defines a relation over the attribute C means the resultant relation after the division operation will contain only those attributes that will be available in the relation R but not in the relation S. That consists of set of tuples from R that match combination of every tuple in S. I hope you might not be able to basically understand this right now, but when we will basically look at the example, then I hope things will be clear. So let's look at the example. Okay, before going to the example, as I told you, all these additional operations that are not the basic operations, they can be basically expressed in terms of the basic operation. As we saw that the join that could be represented in terms of basically Cartesian product and likewise division can be expressed as follows. Suppose we have relation R, then if we project R over C and here C is the attribute or set of attributes that are available in relation R but not in relation S. So we need to include only those attributes of R that are available in relation R but not in C. So if we give it a name T1, you can see here we name it T1
then what we do, we perform a Cartesian product over T1 and S, and the result of this Cartesian product, then we perform a set difference between the result of this Cartesian product and R. T1 cross S minus R, and again we project over the attribute that are only available in R but not in relation S, and finally we give it a name T2. And if we perform a set difference on T1 and T2, means T1 minus T2, then this could be equivalent to division of R divided by S, or R division S. These all steps will be equivalent. Okay, let's look at the example. Suppose we have a situation that you have to identify all clients who have viewed all properties with 3 rooms. So let's try to understand this example. What basically we are being asked, we need to identify only clients, right? We are interested only in clients. So which kind of clients? Okay, who have viewed all the properties, right, with 3 rooms. So now you need to understand that first of all the information that we need to extract is available in viewing relation. What kind of information? That they have viewed the properties. So a client should have viewed a property, but there is again a condition that properties with 3 rooms. So the room information is available in property for rent relation, right? You need to basically look at these two tables, viewing and property for rent, because the client number that is available in viewing and property number that is available in property for rent. And you can see here property number is also available in viewing table. So property number is acting as a primary key plus foreign key. If we look at this situation, then we can use division operation in this particular scenario. So we projected over viewing and we were interested in only 2 attributes. One is client number and the second attribute is property number. So from the viewing relation, we had a projection, then we divided it with a relation, that is a result of projection plus restriction. Here this is the restriction representation symbol, and we apply a restriction on property for rent relation. We specifically first apply selection that rooms equals to 3. Here you can see that room equals to 3. Only those properties should be selected where number of rooms is 3. We got only property number of those properties where the number of room were 3. So we divide this thing. So if we talked about C that we discussed in the definition of division operation, then C is equal to client number, because the client number is available in our left relation in viewing and the right side contain only attribute that is property number. So C is a subset. Basically C is the A minus B, and A contains
and A contains client number and property number and B contains only property number. You can see here in the slide. जी, अब आप लोग स्लाइड में देख सकते हैं व्यूइंग रिलेशन के अगेंस्ट जो हमारे पास रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है वो ये हुआ है, जिसमें हमारे पास दो एट्रीब्यूट हैं, फर्स्ट क्लाइंट नंबर एंड सेकंड प्रॉपर्टी नंबर, और उसके अगेंस्ट हमें ये टपल्स शो हो रही हैं। दूसरा जो हमारा रिलेशन था वो प्रॉपर्टी फॉर रेंट का रिलेशन था और उसके अंदर हमारे पास एक ही एट्रीब्यूट है, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर, और इस केस में हमारे पास दो टपल्स शो हो रही हैं। और ये जो है ये हमारा रिजल्ट का रिलेशन है जिसमें सिर्फ क्लाइंट नंबर शो हो रहा है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि हमारे पास वो एट्रीब्यूट शो होंगे जो टेबल ए के अंदर हों लेकिन बी के अंदर ना हो। तो ए के अंदर हमारे पास क्लाइंट नंबर है और बी के अंदर यहाँ पे क्लाइंट नंबर नहीं है, तो रिजल्ट के रिलेशन में यहाँ पे सिर्फ क्या आपके पास शो हो रहा है, क्लाइंट नंबर, और उसके अगेंस्ट आपको एक ही टपल शो हो रहा है, दैट इज CR56। Here the client number CR56 have viewed both these property, so he is basically satisfying our predicate in this particular example. It means that client number CR56 has viewed all the properties that have 3 rooms. If we look at the CR76, CR76 have viewed PG4 but it hasn't viewed PG36. CR76 only viewed PG4. Therefore, CR76 is not included in the division result. Likewise, CR62, he hasn't viewed basically PG4 or PG36. Therefore, it will also be not included in the division result. There is only one client, that is CR56, who is included in the division result. This is the result table or relation. यहाँ पे आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। लेफ्ट साइड पे डिवीजन ऑपरेशन से पहले ये जो आपकी एक्सप्रेशन है इसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, और राइट साइड पे डिवीजन ऑपरेशन के बाद आपकी ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। ओके, और नेक्स्ट ऑपरेशन इज एग्रीगेट ऑपरेशन। एग्रीगेशन को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी बेस के अंदर AL है और पैरेंथेसिस के अंदर आपका रिलेशन है। R इज बेसिकली अ रिलेशन। कीप इन माइंड एग्रीगेशन कैसे होती है। So aggregation operation applies aggregate function list AL to R relation to define a relation over the aggregate list. अब मैं फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। AL जो है वो एग्रीगेट फंक्शन लिस्ट है टू R, और R हमारा रिलेशन है जिसके ऊपर बेसिकली हम एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करेंगे टू डिफाइन अ रिलेशन ओवर द एग्रीगेट list. Second point is AL contains one or more aggregate function or attribute pairs. अब यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है, हमेशा AL जो है वो पेयर की फॉर्म में होगी। पेयर किसका? एग्रीगेट फंक्शन का, और एग्रीगेट फंक्शन किस एट्रीब्यूट के ऊपर आपने लगाया है। ठीक है, इस पॉइंट की एग्जांपल हम लेते हैं। सैलरी वाले जितने एट्रीब्यूट हैं उनका सम कैलकुलेट करना है, तो सम हमारा जो है वो एग्रीगेट फंक्शन है और किस एट्रीब्यूट के ऊपर लगेगा, किस एट्रीब्यूट के ऊपर लगेगा, सैलरी के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो ये इसकी एक एग्जांपल है। ओके, व्हाट काइंड ऑफ एग्रीगेट फंक्शंस आर अवेलेबल। अब हम देखते हैं मेन जो हमारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, एंड दीज आर काउंट, सम, एवरेज, मिनिमम एंड मैक्सिमम।
In relational algebra, count is very simple. Basically, it provides you the count of a particular or associated attribute. अगला जो है वो सम है, मीन्स हम टोटल सैलरी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर सम का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इज एवरेज। इसी तरह हमारे पास एवरेज का फंक्शन है और वो एवरेज का फंक्शन रिटर्न करता है। अगर हम एवरेज सैलरी ऑफ स्टाफ फाइंड करना चाहते हैं तो इस फंक्शन को यूज करेंगे। नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज मिन। मिन मीन्स मिनिमम से निकला है। वो स्टाफ मेंबर जिसकी सबसे कम सैलरी है या वो स्टाफ मेंबर जिसकी सबसे कम एज है, वहां हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? मिनिमम का। इसी तरह लास्ट में आपका जो फंक्शन है दैट इज मैक्स मींस मैक्सिमम। इसी तरह वो स्टाफ मेंबर जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है या वो स्टाफ मेंबर जिसकी एज सबसे ज्यादा है तो उस पे हम मैक्सिमम का फंक्शन अप्लाई करेंगे। Okay, this is the example of aggregate operation. How many properties cost more than 350 pound per month to rent? जरा क्वेश्चन को गौर से देखें। आपसे पूछा जा रहा है ऐसी कितनी प्रॉपर्टीज हैं जिनका रेंट पर मंथ दैट इज मोर देन 350 पाउंड। इसमें अब आप देखें तो पहली बात काउंट पूछा जा रहा है। इट्स वेरी ऑब्वियस हाउ मैनी प्रॉपर्टीज मीन्स काउंट की बात हो रही है यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि आपसे पूछा किसके बारे में जा रहा है? प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जा रहा है। अब देखें ये वही वाला ऑपरेशन है रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन आपको पता है रीनेमिंग के लिए यूज होता था और हमने क्या किया, जो हमारा रिजल्ट आएगा इस एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करने के बाद, इसमें आपको एक बात याद रखनी है, ऑपरेंड्स भी रिलेशन होते हैं और जो रिजल्ट आता है वो भी रिलेशन होते हैं। अब आप देखें आपने एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई किया है, एग्रीगेट से पहले रीनेम वाला हिस्सा है इसको भूल जाएं। आपने क्या कहा? आपने कहा कि काउंट करो एग्रीगेट फंक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपने यूज किया। यहाँ पे देखें आपने एग्रीगेट फंक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे यूज किया है और इसकी बेस में क्या आ सकता है? इसकी बेस में एग्रीगेट फंक्शन लिस्ट आ सकती है। दिस लिस्ट विल ऑलवेज बी इन पेयर। पेयर किसका होगा? कौन सा एग्रीगेट फंक्शन लगाना है और किस एट्रीब्यूट के ऊपर लगाना है। हमने काउंट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने काउंट का एग्रीगेट फंक्शन लगाया है यहाँ पे क्योंकि हमें नंबर चाहिए था। दूसरी बात, हमने किसको काउंट करना है? हम प्रॉपर्टी नंबर को काउंट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले पैरेंथेसिस के अंदर हमने एक और ऑपरेशन अप्लाई किया है और वो क्या है? पैरेंथेसिस के अंदर जो हमने एक और ऑपरेशन अप्लाई किया है वो है रिस्ट्रिक्शन का। इसको आप लोग सिलेक्शन भी बोलते हैं और सिलेक्शन के अंदर हमने क्या है? रिस्ट्रिक्शन लगाई और रिस्ट्रिक्शन क्या है? रेंट इज ग्रेटर देन 350। और ये किस रिलेशन के ऊपर हमने लगाया है? प्रॉपर्टी फॉर रेंट रिलेशन के ऊपर। अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो एग्रीगेट फंक्शन है ये सिर्फ सिंगल रिजल्ट रिटर्न करेंगे। अब इसको हमने रीनेम कर दिया है और रीनेम किसके साथ हमने किया है? और उसको हमने रीनेम करके उसका नाम क्या रख दिया? माई काउंट। रीनेम में हमने कहा रिलेशन आर और उस एट्रीब्यूट को जो वैल्यू हमें काउंट की फॉर्म में रिटर्न करेगा उसको हमने माई काउंट कह दिया। तो इसका रिजल्ट देखें, माई काउंट की जो वैल्यू है वो 5 आएगी। यहाँ पे देखें माई काउंट की वैल्यू आपके पास 5 आई है। 5 क्यों आई है? क्योंकि ऐसी 5 प्रॉपर्टीज हैं जिनकी कॉस्ट ग्रेटर देन 350 पाउंड है। तो फर्स्ट ये जो हमारी सिचुएशन थी, ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखी तो उसके अगेंस्ट जो हमें रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है वो ये हुआ है माई काउंट।
और उसके अगेंस्ट आपको नंबर जो मिला है वो क्या है 5, यानी टोटल ऐसी 5 प्रॉपर्टीज हैं जिनका रेंट 350 पाउंड से ग्रेटर है। नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है दैट इज फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम एंड एवरेज स्टाफ सैलरी। इस कंडीशन में हमने एग्रीगेट ऑपरेशन लगाना है और फिर उस पर मुख्तलिफ फंक्शन लगाने हैं। लेफ्ट साइड पर हमने रीनेम ऑपरेशन लगाया है और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं 3 एट्रीब्यूट्स आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज कैलकुलेट करना है, तो टोटल आपको कितने एट्रीब्यूट्स चाहिए 3। उसको हमने माई मिन, माई मैक्स और माई एवरेज कह दिया, आप कुछ भी कह सकते हैं। फिर हमने एग्रीगेट फंक्शन लगाया। आप देखें एग्रीगेट फंक्शन की बेस में फंक्शन लिस्ट ली जो AL है। AL जो है वो इन द फॉर्म ऑफ पेयर है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया है। और पेयर किस किस चीज का होगा, एग्रीगेट फंक्शन प्लस एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट तो एक ही इस्तेमाल हो रहा है और वो क्या है सैलरी। ये देखें सैलरी का एट्रीब्यूट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं और सैलरी का हमने मिन मैक्स और एवरेज निकालना है। आप देखें यहाँ पे मिन स्पेस सैलरी कॉमा मैक्स स्पेस सैलरी कॉमा एवरेज स्पेस सैलरी, ये सब जो है स्टाफ रिलेशन में से आ रहे हैं। किस में से आ रहे हैं, जो आपका स्टाफ रिलेशन है। तो इस एक्सप्रेशन के अगेंस्ट, कंडीशन के अगेंस्ट जो आपका रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है वो ये है, माई मिन, माई मैक्स, माई एवरेज। तो मिनिमम जो सैलरी स्टाफ की कैलकुलेट हुई है दैट इज 9000, मैक्सिमम 30,000 एंड एवरेज सैलरी इज 17,000। तो मैं बार बार आपको यही कहूँगा जब भी ऐसी एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप ड्रीम होम जो हमारी केस स्टडी है बुक ओपन करके उस केस स्टडी के टेबल्स को सामने रख लिया करें और फिर ये जो रिजल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हुए आप चेक कर लिया करें कि रिजल्ट ठीक है या नहीं। ओके, इसके बाद जो अगली चीज है दैट इज ग्रुपिंग ऑपरेशन। इसमें भी एग्रीगेशन ही अप्लाई करनी है, लेकिन यहाँ पर ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई करनी है, नॉट ऑन द होल रिलेशन। इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है, आप लोग देखें यहाँ पे GA है और बाकी वही एग्रीगेशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, AL है, फंक्शन लिस्ट है और फिर आपका रिलेशन है जिसके ऊपर एग्रीगेशन अप्लाई कर रहे होते हैं। अब इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ग्रुप्स द टपल्स ऑफ रिलेशन आर बाय द ग्रुपिंग एट्रीब्यूट्स GA and then applies the aggregate function list AL to define a new relation. As I already told you, AL contains one or more aggregate function and attribute pairs. अब मैं थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इस पॉइंट में क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि अब जो रिजल्टिंग रिलेशन होगा इट विल कंटेन्स द ग्रुपिंग एट्रीब्यूट्स, अब ग्रुपिंग एट्रीब्यूट जो भी वो एक भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। अब इसका रिजल्ट जो होगा रिलेशन का वो एक टपल नहीं होगा, उसमें जितने पॉसिबल ग्रुप बनते हैं, मसलन अगर हम ब्रांच के ऊपर ग्रुपिंग कर रहे थे तो अब जितनी डिफरेंट ब्रांचेज हैं हर एक उतनी टपल्स आपकी इसकी बनेंगी और उस रिलेशनल अलजेब्रा का एक टोटल बनेगा और एग्रीगेट फंक्शन वाला उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो मतलब उसकी टपल सिर्फ एक नहीं होगी जैसे सिर्फ एग्रीगेट के अंदर हम देख रहे थे, ठीक है। तो मतलब जितने भी ग्रुप्स की पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो सारी टपल्स आपको नजर आएंगी। एग्जाम्पल को जब आप देखेंगे इट वुड बी वेरी क्लियर।